सभी को राम राम। जय श्री महाकाल। तो आइए इस ब्यूटीफुल डे की शुरुआत करते हैं विद द ब्यूटीफुल सोल। और आज है 30 सितंबर, इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे। सो विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड विल स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। So hello Hello, everyone, this is everyone. Renu Mangtani from the platform of Ankakshar Miracles, which is the Institute of Occult Sciences, Spiritual Activities and Research. And I had been into the banking industry for about 6 to 7 years, and then now turned out as an internationally renowned author of many books, YouTuber, researcher, influencer, Dr. APJ Abdul Kalam Awardee, National and International Youth Icon Awardee by Governor of Maharashtra, and much more. And let's not take much time today. We have Munmun Edasani ma'am, exclusive from Dubai. So we can say that she an international soul on the international platform, and that too on an international podcast day. Oh wow! So how are you doing, ma'am, today? I'm very good, Renu. And first of all, hello, everyone. Namaste. And thank you for inviting me on this platform. I've heard a lot about your Antakshar miracles, and I'm finding it great to have you here with me. Thank you so much, ma'am, and thanks for joining it on a very short notice because it was like International Podcast Day था, तो एक international soul का होना, it was like really special, and आपके लिए भी ये special moment ही होगा, we are for sure. So moving on, talking about her, she is the founder of Team Adhikar, which is basically a social activity ma'am is doing. Chartered financial analyst, numerologist, a top-notch motivational writer, and much more. Over to you, Munmun ma'am. Kindly introduce yourself more to our audience, that how this transformational journey started and what was the inspiration behind it. Basically, I would say I was chartered financial analyst. I am. I was working with I worked with various banks previously, but ऐसा होता है कि we change our priorities according to our family life and everything. So during COVID times, I was having a passion of writing and everything. So I started with my blogging, and then it turned into anthologies, and I started with my own books I have published, and now I have published my own three books. So behind Team Adhikar is the motto of giving the education to underprivileged children. So I just really require little development in some other lives, and it is giving me satisfaction and happiness somewhere. So it's not about only doing some social work, it's about really bringing some change in the society. And it's not only me, my team is working hard on this. So I'm really grateful for them also. And I'm grateful to God who has chosen me for doing this activity too. Because मैंने भी जब टीम अधिकार पेज पे देखा था, सो लाइक गिविंग डोनेशंस एंड एवरीथिंग, हर काइंड ही हर सॉर्ट ऑफ सोशल एक्टिविटी जो आप कर सकती हैं, वो और आपकी टीम, मैंने देखा कि एकदम दिल लगा के काम कर रही है। सो विच इज एक्चुअली ब्यूटीफुल। मतलब आज के कहते हैं ना कि बिजी वर्ल्ड में किसी के लिए टाइम देना ही बहुत होता है, पहली बात तो। बट आप जो सोशल एक्टिविटी कर रही हैं, दैट्स रियली इनक्रेडिबल, दैट्स रियली हैट्स ऑफ। मतलब मैम का पेज कोई भी विजिट करेगा तो आप लोग को एक इंस्पिरेशन मिलेगा। सो शी इज एन इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी। और आप लोग को बताना चाहूंगी कि मैम शायर भी हैं, तो मैंने उनके पेज पे एक शायरी पढ़ी थी, मैं आप सबको सुनाना चाहूंगी। लेकर हजारों ख्वाहिशें आए हैं जो मिलने, ए दिल संभाल लेना वो मायूस ना जाए। वह एक कहानी अधूरी अधूरी सी है बरसों से, वो साथ बैठे और पूरी कर जाएं। ये मैम के पेज से मैंने मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को और थोड़ा सा ऑडियंस को, लिसनर्स के लिए थोड़ी सी शायरी भी हो जाए। तो मैम एक शायर भी है, आपको बताना चाहूंगी।
तो और यही नहीं, आगे आपको बताना चाहूंगी कि मैम ऑकल्ट फील्ड से भी जुड़ी हैं। तो टॉकिंग अबाउट द ऑकल्ट फील्ड, मैम व्हाट न्यूमरोलॉजी टिप्स यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर ऑडियंस, लिसनर्स एंड व्यूअर्स आउट हियर टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स इन देयर बिजी वर्ल्ड? बेसिकली आई वुड से कि कुछ लोग होते हैं जो मानते हैं न्यूमरोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी को। कुछ लोग होते हैं कि हम तो वहम नहीं पालते, वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स। But being into the part of numerology and graphology, because I went through that also, I have discovered that it is a path of self discovery. And I would suggest everyone कि you should go for it. See, मानना नहीं मानना एक अलग बात है, but if you really want to give a chance to your life and you are stuck somewhere, so it is a science of numbers, and it is not at all dealing with your time zone or your luck zone. You can change your own luck by dealing with your own strengths and weaknesses. So I would suggest it is a powerful tool, and you should really look into your destiny. You can change your destiny by your own hands, not just by sitting and waiting for God to turn something for you. No, God is there. I believe in God. I would say you should believe in God. But अगर आप हाथ पैर ही नहीं लाओगे तो भगवान भी क्या करेंगे? तो उस एग्जैक्टली। चीज के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि इट इज अ इट इज रियली अ पार्ट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड हील योर माइंड्स। एंड मतलब मैं तो ये बोलूंगी, आई एम जनरली नॉट डीलिंग विद द क्लाइंट्स एज सच, बट उस जोन में आने के बाद मैं ये चाहूंगी कि अगर कोई जुड़ना भी चाहता है और कुछ सीखना चाहता है तो डेफिनेटली न्यूमेरोलॉजी को एक बार का चांस देना चाहिए। एग्जैक्टली exactly, और जैसे आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में लोग बिलीव नहीं करते हैं, एक रियल आपको बताना चाहूंगी, पहले मैं भी नहीं मानती थी ये सारी चीजों में। मतलब एस्ट्रोलॉजी सुना था, न्यूमरोलॉजी के बारे में तो सुना भी नहीं था, बट मैं भी मतलब उसके बारे में फिर जब मैंने सुना तो मेरा नाम भी इट वाज RENU व्हेन यू स्पेल करेक्टली। बट देन माय हस्बैंड मिस्टर अभिषेक, उन्होंने चेंज किया मेरा नाम टू AI, RAINU। तो केवल AI जोड़ने से इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आई, जैसे कि कवर पे आना और बहुत सारी मैजिकल चीजें अचीव की मैंने मेरे लाइफ में। तो ऐसा लगता है एग्जैक्टली। लोगों को कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से कुछ नहीं होता है, ये सारे वहम होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर देखने जाओ तो नंबर्स आपके बारे में सब कुछ बता देंगे, एंड एवरी डेट ऑफ बर्थ इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। तो न्यूमरोलॉजी सब कुछ यस, इट बताती है। चेंजेस योर life. Yeah, it is your life path, it is your destiny. It's your actually you are able to do your soul path also somehow. तो मेरा ये मानना है कि it is somehow giving you energy, vibrations which you were not dealing with, और शायद negativity हटाने में हमारी तरफ। Ma'am. So today, when you're holding so many emotions by being a corporate versatile personality, an occultist, then an author, and contributing towards NGO, and above all a homemaker, so how do you manage everything in 24 hours? See, well, first of all, I would say I'm not doing any other thing special which all are doing. I'm also doing the same thing. But yeah, although it is difficult to manage everything at a time, and sometimes you have to cultivate your own personality by dealing with your strengths and weaknesses and your priorities. तो क्या होता है ना कि we only can do it। अगर आप होम मेकर हो तो आपको ये खुद ही समझना है कि मेरे लिए वर्किंग क्या चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या आप वर्क प्लेस पे हो तो आपको ये समझना है कि मेरे लिए बाकी सारी चीजें कैसे बैलेंस करना जरूरी है, बिकॉज नो वन एल्स कैन वियर ओन योर शूज ना। तो आपको अपने शूज में जाके खुद ही समझना पड़ेगा। या ऑल्दो यू कैन टेक हेल्प, यू कैन टेक एडवाइस, यू कैन टेक सजेशंस ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, एवरीवन अराउंड यू, बट स्टिल यू आर द मेन पर्सन। एंड मुझे ऐसा लगता है टू डील विद ऑल ऑफ योर थिंग्स यू हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस फ्री, गो विद द फ्लो, बी इन द प्रेजेंट। एग्जैक्टली exactly. लेकिन मैम जैसे आपने बोला कि आपको लगता है कि यू आर नॉट डूइंग समथिंग स्पेशल, तो मैं आपको बता दूंगी, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी इज इटसेल्फ स्पेशल। उसे आप स्पेशल कहें या हम में से कोई भी स्पेशल कहे ना, वो स्पेशल लगेगा नहीं, बिकॉज सी ऑथर जो लिख रहा है उसके वर्ड्स सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो आपने जैसे कि बुक्स के बारे में आपके जिक्र किया था, तो मैं आपको बताना चाहूंगी मैम, ब्यूटीफुल ऑथर्स है अपने बुक्स की जिनका टाइटल है बी द लव यू नेवर रिसीव्ड, कुछ पल मेरे साथ। सो मैम ये टाइटल्स ही बहुत सीक्रेटिव, कुछ रीजन है इनके पीछे। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या मिस्ट्री रही इसके पीछे, और एक टचिंग मैसेज आप क्या देना चाहेंगे रीडर्स को?
जैसे कि आपने कहा कि वर्ड्स हील करते हैं, एंड मेरा बहुत मानना है कि वर्ड्स रियली हील द माइंड्स। तो अगर आपका थीम ही अगर इतना सॉलिड है, डेफिनेटली रीडर्स उस पर पहुंचना चाहेंगे, कनेक्ट होना चाहेंगे। तो हम सबसे पहले, हमारा फर्स्ट जॉब ही ये रहता है कि हम रीडर्स को कैसे कनेक्ट करें। तभी आपकी राइटिंग सफल है, नहीं तो आपकी राइटिंग सफल ही नहीं है अगर आप रीडर्स को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि वो एक थेरेपी है, रीडिंग इज अ गुड थेरेपी टू हील योर सेल्फ। एंड आज के जमाने में जहाँ इतना स्ट्रेस है, मेरे को ऐसा लगता है एक टाइम तक नेटफ्लिक्स और ये सब आके उसका भी एक सैचुरेशन आ जाएगा, और लोग वापस पुराने टाइम पे पहुंचेंगे जहाँ पे उनको इन सब चीजों की वापस जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आज पड़ेगी, हमको और बुक्स की तो कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। एक्सपायरी डेट नहीं है। रीडिंग मटेरियल्स आजकल किंडल पे है, ऑनलाइन है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन स्टिल बुक्स आर बुक्स। चाहे फिर आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, तो बुक्स आर रियली योर गाइड। मतलब मैं तो ये भी बोलूंगी कि वो एक गाइड की तरह भी काम करते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह भी काम करते हैं, एक जर्नल की तरह भी काम करते हैं एक राइटर के लिए, एंड एक राइटिंग ब्लॉक हटाने के लिए, इमोशंस के लिए, सब चीज के लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि राइटिंग तो, मेरे को ऐसा लगता है कि हर इंसान को करना चाहिए शायद। अगर आप पब्लिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो सेकेंडली मैटर, लेकिन अपने आप को डिस्कवर करने के लिए भी ना आपको जर्नल करना चाहिए। अपना रूटीन ही सही, आपके इमोशंस या आपका कुछ भी, इट हेल्प्स यू एंड इट मेक्स यू रिकॉल कि यार ये मैंने गलती लास्ट टाइम की थी, आई शुड नॉट रिपीट द सेम थिंग। एंड शायद उसको करते करते यू फिल योर सेल्फ, एंड वो फिल होने के बाद शायद आप वो चीज वापस करते ही नहीं हो। ये भी एक पॉइंट होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो राइटिंग हेल्प करती है, रीडिंग हेल्प करती है। सो दिस इज द बेसिक सीक्रेट बिहाइंड राइटिंग बुक्स एंड कनेक्टिंग टू द रीडर्स। एंड उसके बाद मैं मैसेज ये देना चाहूंगी, बी द लव यू नेवर रिसीव्ड। या द टाइटल बिहाइंड इज दैट कि सम ऑफ अस आर नॉट ओपन। हम लोग बहुत सीक्रेटिव रहते हैं, वी आर नॉट एबल टू शो एंड एक्सप्रेस आवर लव, एंड some of us, because of that, maybe because of the childhood trauma somewhere, or maybe because they have not received the love at a home place or somewhere else. आजकल आप देख ही रहे हो सब जगह बुलिंग और ये सब चीजों का भी, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमको कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहता है, एंड वी फील अनकंफर्टेबल। बट इफ यू आर द पर्सन एंड समवन इज हैप्पी टू कनेक्ट विथ यू, आई थिंक यू शुड ट्राई टू गिव समवन द अनकंडीशनल लव, ताकि आप उसको अनकंफर्टेबल फील करा सकें, ताकि वो भी ग्रो कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट योर ग्रोथ, इट्स बाय गिविंग लव समवन इज ग्रोइंग देम अलोंग विथ यू। मतलब दोनों का विन विन सिचुएशन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी और को प्यार करके आप खुद को भी प्यार करते हो, एंड इफ उसको अनकंडीशनल करते आप खुद ग्रो करते हो, हील करते हो, एंड कुछ ना कहीं सीखते हो, एंड सामने वाला भी आपसे बहुत कुछ सीखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टू रिलीज दैट ट्रॉमा और इनएबिलिटी टू आस्क ऑफ हेल्पिंग, दिस इज द बुक ऑल अबाउट टू रीच योर डेप्थ एंड ट्राई टू गिव द लव टू अनकंडीशनल, मेक अदर्स स्माइल। मतलब स्माइल एक ऐसी चीज है कि अगर आप शायद किसी और के फेस पे देख के बहुत खुश हो सकते हैं, एंड वो ही शायद आपको डबल खुशी देती है कि एटलीस्ट आई डिड समथिंग गुड, आई मेड समवन स्माइल एंड समवन इज स्माइलिंग बिकॉज ऑफ मी। सो दैट इज अ बिग टास्क आई थिंक। दैट्स व्हाट, मुझे एंड अधिकार का पेज देख के स्माइल आया था, जो काम आप कर रहे हैं। दूसरा, कुछ पल मेरे साथ, जैसे कि आपने कहा कि एक मैं शायर हूँ, या आई एम, बट नॉट मच। हाँ, मैं फैन हूँ, कुछ कुछ बुक्स रीड करती हूँ, गुलजार जी के पोएट्रीज और ये सब सब कुछ रहता है। उतने उस लेवल की कवि तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ, मतलब आई ट्राई टू पुट आउट सम ऑफ माई इमोशंस इन दैट वे। उस कुछ पल मेरे साथ इज ऑल्सो अबाउट एक्सेप्टिंग योर फ्लॉज, cherish your love, मतलब your lovely moments and make it memorable one, ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए चले, गिविंग पीस टू ऑल हार्ट्स। लाइक शायद कुछ पल मेरे साथ इज लाइक मोर ऑफ मी बीइंग विथ मी, यू कैन अंडरस्टैंड मोर ऑफ मी एंड मोर ऑफ यू। लाइक इट इज अ mental stability of every person, I would say कि I'm trying to read out the mental stability of everyone around us. तो मैम बताइए कि बुक्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, जैसे कि आपकी रीडर्स कहाँ से परचेज कर सकते हैं। Amazon पे है, फ्लिपकार्ट पे है, किंडल पे है। एक ग्रेट So it's मैम। globally available, yeah. सो जो भी मैम को सुन रहे हैं, एंड बी द लव यू नेवर रिसीव्ड और कुछ पल मेरे साथ, जैसे कि आपने देखा कि मैम ने एक्सप्लेन किया कि क्या सीक्रेट है उसके पीछे और आप क्या सीख सकते हैं उस बुक से, तो आप जरूर परचेज करें।
चलिए आगे बढ़ते हैं मैम। ऐसी क्या चैलेंजेस आपने फेस की है अपने लाइफ में, कुछ वो बताएं। और जैसे कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और ये ही नहीं, मैंने आपके पेज पे और भी लाइंस देखी थी जो मुझे अच्छी लगी है। द मोमेंट यू गिव अप इज द मोमेंट यू लेट अदर्स विन। सो ऐसी कुछ मोटिवेशनल लाइंस और कुछ चैलेंजेस के बारे में जो आपने फेस किए, वो हम सुनना चाहेंगे आपसे। आई थिंक कोविड ने सबसे बड़ा चैलेंज दिया था हमारी लाइफ में कि हम सब घर पे आ गए एंड व्हाट टू डू, मतलब व्हाट इज नेक्स्ट। सारे काम बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, लाइफ कैसे मूव ऑन हो गया। आई नो दैट सम ऑफ अस वर अर्निंग, सम ऑफ अस वर वर्किंग फ्रॉम होम, किसी के जॉब्स भी चले गए थे, लेकिन वो एक ऐसा ऐसा ट्रॉमा बेस्ड टाइम पीरियड था कि हमें नहीं पता था कि हमारा नेक्स्ट क्या है। तो एटलीस्ट हमने, व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड विद माय ओन पैशन, एक घर में एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, स्पेंड मोर ऑफ फैमिली टाइम, कुकिंग, ग्रोइंग। आई थिंक वो सब लोग ही कर रहे थे अपने आप को हील करने के लिए एंड उस नेगेटिविटी से दूर हटाने के लिए। सो मोटिवेशन एक ऐसी चीज है कि उस किसी भी टाइम पीरियड से निकालने के लिए आपको हेल्प करती है। ये लाइंस पढ़ के, सुन के, मेरे हिसाब से म्यूजिक ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट इन ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो। मतलब अगर आप एक सूदिंग म्यूजिक के साथ हैं या आप एक अच्छे वाइब्रेशनल मंत्रास कर रहे हैं, तो वो सारे चैंटिंग और ये सब आपको बहुत हील करता है एंड इट गिव्स यू इंस्पिरेशन टू रीड गुड थिंग्स अराउंड। मतलब गौर कपाल दास जी हैं, मैं उनके बहुत बड़ी फैन हूँ। आई यूज टू admire him a lot, I used to read his books and I used to follow him। उनके अकॉर्डिंगली ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम काफी कुछ चीजें हैं जो अपने आसपास ठीक कर लेते हैं। जैसे कि उनका मानना है कि नो वन इज विनर, यू चूज योर ओन पाथ। मतलब सभी कुछ सीख रहे हैं, नो वन इज द विनर, नो वन इज परफेक्ट। सो आप, अपना डेस्टिनी अपने हाथ में होता है, अपनी ग्रोथ अपने हाथ में होती है कि हमको क्या चीज शेड करना है और किस चीज को शेड करके हमें आगे बढ़ना है। तो आई वुड से कि मेरा बेस्ट मोटो आज के लिए तो यही रहेगा कि सेल्फ एक्सेप्टेंस इज द मेन की टू ब्रिंग अबाउट एनी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करेंगे जो जैसी सिचुएशन है, ये क्या आपने सच का, अगला क्वेश्चन मेरा यही था, स्पिरिचुअलिटी को लेके था कि हम लोग सारी चीजें कैसे अचीव कर सकते हैं विद स्पिरिचुअलिटी। तो जब हम खुद में बिलीव रखेंगे कि हम ये कर सकते हैं, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि अरे ये ऐसा हो गया, ऐसा होना चाहिए था, मेरे हिसाब से नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक हम सिचुएशन को, तब तक हम, कहते हैं ना कि पास्ट का सोचते रहेंगे, फ्यूचर का सोचते रहेंगे, और जो प्रेजेंट है उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बट नो प्रॉब्लम। सो वही कोविड की बात जैसे आप बता रही थी, तो उस टाइम वही हुआ कि मैम सबने अपने पैशन को ही किया, जैसे कि मैंने भी 2020 में ही राइटिंग स्टार्ट की। सो डेफिनेटली। और अभी हम लोग चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे थे, फिर आपने मोटिवेशनल लाइंस बताई, और अगला क्वेश्चन था मैम, आप स्पिरिचुअलिटी से हम सारी चीजें कैसे अचीव कर सकते हैं, आपने सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में बात बताई थी। स्पिरिचुअलिटी से मेरा मानना यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को जानना, अपना मतलब अगर डीपली बात करूं तो देयर आर 7 चक्रास इन आवर बॉडी। उसके लिए मेडिटेशन होना बहुत जरूरी है। बिना मेडिटेशन के आप अपने आप को अंदर से हील ही नहीं कर सकते। अगर आप हील नहीं कर सकते तो आप दूसरों को तो हील क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले सेल्फ हीलिंग इम्पोर्टेंट है। मैंने कोई इसके लिए थेरेपी वगैरह नहीं लर्न किया है, बस न्यूमेरोलॉजी एंड मेडिटेशन ने मुझे बहुत कुछ हेल्प किया है स्पिरिचुअलिटी पाथ में ग्रो होने के लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है इट इज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग कंसर्न्ड विद योर इनर सोल रादर देन बीइंग फिजिकली कनेक्टेड टू समथिंग और materialistically connected to something। it's about all about your human spirit, your ethics, your principles। तो वही एक स्पिरिचुअलिटी हमको डील करती है, और से हम सीखते हैं और उसी से हमें डील करना आता है किसी भी चैलेंज को। क्योंकि ऑल्दो हमारे आसपास रहते हैं काफी लोग, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि यू आर अलोन, यू हैव टू डील योर प्रॉब्लम अलोन। उस टाइम पे आपको स्पिरिचुअलिटी ही हेल्प करती है कि आप अपने आंसर्स खुद की लर्निंग से ही फाइंड आउट कर पाते हो, खुद के चैंटिंग से, खुद की रीडिंग बुक से कुछ। जो स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर पावर लेके आती है, आई थिंक वो कोई भी चीज नहीं लेके आ सकती है। एग्जैक्टली exactly. तो इसी बात पे कहना चाहूंगी, मेडिटेटिंग सुप्रीम लॉर्ड एवरी नाइट, ईच एंड एवरी वरी इन लाइफ इज इजीली कोप्ड अप, सो नेवर लूज होप। सो थैंक यू सो एग्जैक्टली। मच मैम फॉर योर ब्यूटीफुल आंसर्स, और आपने जो भी हमारे साथ शेयर किया, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। एंड मैम व्हाट नहीं नहीं, इट्स अबाउट। सेम हियर, इट्स विथ यू आल्सो, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई वुड से कि आपका आपका प्लेटफॉर्म आई थिंक इज डूइंग अ ग्रेट जॉब।
inviting us is a different thing to share our views and opinions, but having the patience of hearing us and exchanging the thoughts and views and taking it towards the viewers and readers, वो एक बहुत बड़ा जॉब है. मतलब हम तो सिर्फ आपसे शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप तो पूरी दुनिया से शेयर कर रहे हैं. दैट इज अ बिग टास्क. एंड उसके बाद यू आर गिविंग द प्लेटफॉर्म टू द authors, numerologists and various other, मतलब आप spiritual research activities में भी involved हैं, एज वेल एज आप न्यू कमर्स को भी एक चांस देते हैं, ताकि आप उनके साथ भी, मतलब देर इज नो बायसनेस कि नहीं यार ये कोई पर्सनालिटी नहीं है, इसका क्यों लेने का, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब यू गिव चांस टू ईच एंड एवरीवन अराउंड, सो दैट पीपल कैन नो कि इट्स नॉट अबाउट ओनली दी नोन पीपल, इट्स अबाउट रियली द कंटेंट what you want to really share to the world, to make them know कि we want to share the quality. and somehow शायद quality ही चाहिए जो आगे तक जानी चाहिए. चाहे आप, मतलब चाहे आप मुझसे बात करें, आपकी बात करें, या चाहे आप कितने जिनका आप इंटरव्यू लेते हैं. आई थिंक वी चूज द क्वालिटी ओनली एंड वी वांट टू रीच आउट to the people with quality only. So that is the main job which you are doing, and hats off for that. Thank you so much, ma'am. Thanks for coming. Thanks for your precious time. It really means more, and that too you came on short notice. It really means more. All the love, ऑल द इंस्पिरेशनल वर्ड्स, मतलब जब ये वर्ड्स कोई बोलता है ना कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो उस वो मोमेंट बन जाता है और वो लगता है कि चलो यस डेफिनेटली वी आर डूइंग समथिंग. सबसे पहले सबका टाइम देना ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, और बाकी ऐसा होता है कि सबका टाइम और ये प्यार जब मिल जाता है ना, तो हमें लगता है कि हम और भी सरप्राइजेस करते रहें और भी बहुत कुछ लाते रहें. और जो मैम ने बताया कि हम लोग केवल एक्सपीरियंस्ड को ही नहीं, फ्रेशर्स को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्योंकि देखिए ऑथर का जो प्लेटफॉर्म है वो ऐसा है कि वो ऐसा होता है ना कि किसी स्टोरी मेरी किसी बुक में लिखी हुई है, मैं लिख रही हूँ, बट मुझे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो अंकाक्षर मिरेकल्स इज द प्लेटफॉर्म विच इज प्रोवाइडिंग यू ऑल दीज थिंग्स. सो जो भी लिसनर्स, जो भी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, अगर आप ऑथर बनना चाहते हैं तो ankaksharmiracles@gmail.com पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. फेसबुक पेज है हमारा अंकाक्षर मिराकल्स, और मेरा इंस्टाग्राम पेज है truth_of_life82, और मेरे हस्बैंड का है अभिषेक चित्रांश. तो अगर आप ऑथर बनना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं. और अभी हमारी 108 को ऑथर्स की बुक कंप्लीट हुई है, विच इज माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स. हमने अभी ही सेलिब्रेशन किया है उसका. उसी के साथ 7 ली ऑफ लाइफ है, और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे. बच्चों के लिए भी हम लोग कर रहे हैं, विच इज कैनेडा इन्फेंटल इज द इंस्टाग्राम पेज नेम, जहाँ पे हम लोग बच्चों के टैलेंट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हम लोग बच्चों के लिए भी प्लान कर रहे हैं अभी. और उसके अलावा राइट टू अर्न के बारे में बताना चाहूंगी. वहां पे हम लोग मेंबरशिप फीस ले रहे हैं, दैट इज अ ईयरली मेंबरशिप फीस, ₹360. और विनर्स के लिए जो प्राइस रहेगा दैट इज ₹51. बट जो ये अमाउंट है ₹360 का, दैट अमाउंट इज जस्ट फॉर द मोटिवेशन. सो आप लोग अगर फर्दर इस कंसेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच मैम. थैंक्स फॉर कमिंग. थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम. तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए अंकाक्षर मेरेकल्स के साथ. जल्द ही मिलेंगे अगले न्यू गेस्ट के साथ. थैंक यू मैम. टेक केयर. Thank you so much. Thank you. थैंक यू. बाय बाय. Bye bye. See you.